So Sir? anyone has, yes, please go ahead. सर मिड सेम कब होंगे? अभी तो उसका कोई आइडिया नहीं, मेरा मिड सेम कोई नोटिस आई नहीं है मेरे पास। ठीक है, आगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, सर मैम कह रही थी कि मई के फर्स्ट वीक में होंगे। अब मुझे पता नहीं है बेटे इसका। हाँ, ठीक है, किसी कोई डाउट है? यस, बताएं बेटे। अमन पटेल, अमन No, पटेल। sir. Yes, sir. Now let me share my screen. Just wait. Yes. Now my screen is visible. Yes, bete. Yes, sir. Yes, sir. So we were discussing some important terms, है ना? Pages, frames, page table, physical address space, virtual address space. Physical address space is also known as size of the main memory. So we will continue from here. So, logical address or virtual address, both are same. It is an address which is referenced or we can say generated by CPU. Logical address space or virtual address space in words or bytes, है ना? तो ये बिट से भी हो सकता है और वर्ड्स और बाइट में हो सकता है। द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय प्रोग्राम। तो वर्चुअल एड्रेस इट इज रिप्रेजेंटेड इन बिट्स एंड वर्चुअल एड्रेस स्पेस सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेस। तो जितने भी सेट बनेंगे उस बिट से, जैसे सपोज इफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस कंटेनिंग 10 बिट्स, then how many addresses what is the virtual address space to the power 10? ठीक है, इधर बेटे। Yes, sir. तो अगर से लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर 15 बिट है, 15 बिट, देन लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज टू द पावर 15. Physical address, it is an address that is actually available on main memory. Physical address space, the set of all physical address corresponding to the logical address. If a logical address is equal to 31 bits, then logical address space is to the power 31 words. That is 2 की power 31 means 2 की power 10 को क्या लिखते हैं हम? किलो. Let me use the notation. ना 2 की power 10 is equal to 1k. 2 की power 20 ये क्या होता है? 1 बिलियन. 2 की पावर 30 ये होता है गीगा. ठीक है, इधर बेटे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो पता होगा आपको टर्मिनोलॉजी। तो अब ऐसे यहाँ पे 2 की पावर 31 कर सकते हैं, 2 into 2 की पावर 30, that is become what? This become g, so 2g. Okay, so this is if logical address space is 128 million words, so 128 can be written 2 की power 7 and million means 2 की power 20, that is 2 की power 7 into 2 की power 20. then logical address is equal to just take log. तो एग्जाम में अगर से क्वेश्चन या क्विज में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, logical address space is given, logical address is given and you have to compute logical address space, then 2 की पावर कर दीजिएगा. रिवर्स अगर से होगा तो क्या होगा? अगर से logical address space is given, this is given and we have to find what? logical address number. तो क्या करेंगे, इसका log ले लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे space is given, तो log 2 की पावर 27, that is 27. okay, it's clear? Yes, sir. yes, तो it's just reverse process है उसका. physical address 22 bit, then physical address space 2 की पावर 22, 1 million 4 million, that उल्टा हो जाएगा इसका. So please take 30 seconds and go all these points one by one very carefully. Do not confuse with the word logical address and logical address space. Both are not same.
Logical address is different. Logical address space is different. Physical address is a different thing. Physical address space is a different thing. Okay. What happens when logical address is given? You have to compute logical address space, or logical address space is given. You have to compute logical address, and vice versa. तो कैसे निकालना है, क्या है, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो. Just take 30 seconds and let me know in case of any doubt, any confusion. Yes, बेटे, किसी को डाउट कोई? No, sir. Okay. Now let me go to the next point. The mapping from virtual address is done by the memory management unit. So mapping from virtual address to physical address is done by memory management. ये भी एक नंबर क्वेश्चन आता है MCQ टाइप में, which is like virtual address to physical address translation is handled by a mapping is handled by which unit? Memory management unit. It is a hardware device, and this mapping is known as paging technique. The physical address space is conceptually divided into number of blocks that call frames. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको दिमाग में बैठा लीजिए. फिजिकल एड्रेस स्पेस को डिवाइड करते हैं बहुत सारे ब्लॉक्स में, और उस ब्लॉक्स को क्या कहते हैं? फ्रेम्स कहते हैं. वर्चुअल एड्रेस स्पेस को बहुत सारे ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, और उसे कहते हैं क्या कहते हैं? बताइए. The pages. पेजेस. वेरी गुड. तो कंसेप्चुअली यह है, ऐसा नहीं फिजिकल डिवाइड होता है, फिजिकल में जैसा वैसे ही रहता है, बट कंसेप्चुअली इट इज डिवाइडेड लाइक दिस. पेज साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज. जो पेज की साइज होगी वो फ्रेम साइज होगी. फिजिकल एड्रेस स्पेस 12 बिट, मैंने बताया भी आपको, तो ऊपर मैंने बताया 4000 हो जाएगा. ये वाले ये क्वेश्चन गिवन है. फिजिकल एड्रेस स्पेस 12 बिट्स, then physical address space is 4000 words. Logical address space is 13 bits. Then we can compute logical address space 8000 words. And it is given page size, which is also frame size, equal to what? 1000 words. ये assumption मान लिया है. तो अब ये बताइए, CPU लॉजिकल एड्रेस पे कितने बिट हैं? लॉजिकल एड्रेस में हमारे पास देखा जाए कितने बिट्स हैं? 13 बिट्स है ना? यस. Yes. Yes, sir. ये कवर करिए. तो लॉजिकल एड्रेस में 13 बिट्स है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस 8000? मतलब कितना हो गया ये? 2 की पावर 13. ठीक है. फिजिकल एड्रेस स्पेस 12 बिट्स. तो फिजिकल एड्रेस कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2, 12, 2 की पावर 14. अब देखिए नंबर ऑफ फ्रेम कितने होंगे बताइए. नंबर ऑफ फ्रेम बताए बेटे, कितना होगा? नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने होंगे जल्दी बताइए. ठीक है. लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना है? 2 पावर 13 डिवाइड बाई फ्रेम साइज कितनी है? 1000. मींस 8000 डिवाइड बाई 1000, दैट इज व्हाट? 8. 8 मींस टू द पावर 3. क्लियर हुआ? यस. क्लियर? Yes, sir. नंबर ऑफ फ्रेम निकल गया. तो देखिए नंबर ऑफ फ्रेम 8 है, तो 8 आपके पास फ्रेम्स हैं, तो 8 फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट चाहिए होंगे? पता है? 8 फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हाउ मेनी बिट्स यू रिक्वायर्ड? श्वेता, 2.
2. ओके, इज करेक्ट? Yes. दो चाहिए होंगे 8 बिट 8 सीरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए। आपके पास Yes, sir. 3, आपके पास एक कॉलोनी में 8 घर हैं, तो आपको अगर से उनको बाइनरी में नंबरिंग करनी है तो आपको Sir, कितने चाहिए 3. होंगे? 3 चाहिए होंगे। 2 की पावर 3 तो हुआ ना, 8 का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 3, दैट इज 3 बिट्स आर रिक्वायर्ड। भाई 2 बिट्स से क्या हो सकता है? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 8 कैसे हो पाएगा इसमें बताइए? आपके कॉलोनी में 8 घर थे, अभी कितनी नंबरिंग की आपने? सारी तो की ना। 2 बिट से कितने कर सकते हैं आप? 4 नंबरिंग कर सकते। आपको कितने करने? 8 करने थे, तो 3 बिट चाहिए होंगे। ओके, क्लियर? Yes, sir. तो 3 बिट चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ हमारा? ये 3 बिट हो गया। कितने बच गए? तो पी की वैल्यू क्या हो गई हमारी? पी की वैल्यू हो गई 3, तो पी की वैल्यू हो गई। ओके, तो पेज नंबर हम 3 बिट में से कुछ भी हो सकता है। पेज नंबर आपका ये भी हो सकता है 0 1 0 हो सकता है, 0 1 1 भी हो सकता है, 1 1 1 कुछ भी हो सकता है पेज नंबर। ओके, क्लियर है? Yes. यस। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट पेज नंबर एंड हाउ मेनी बिट्स आर इन ऑफसेट। तो 13 बिट्स टोटल गिवन थी, फ्रेम साइज गिवन थी, तो हमने देखा कि भाई इसमें फ्रेम कितने हो सकते हैं? 8, मतलब 3 बिट किसके लिए हो जाएगी? फॉर योर पेज नंबर एंड 10। नाउ सिमिलरली व्हाट इज द नंबर ऑफ पेजेस? जल्दी बताइए, इसका आंसर आप लोग बताइए। यस, नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे बेटे? यस श्वेता, 8. नंबर नंबर ऑफ फ्रेम जैसे निकालो वैसे नंबर ऑफ पेज निकालिए। So, 4। sir, यस करेक्ट। तो 2 की पावर 12 is 4000 वर्ड्स, दैट इज डिवाइड बाय व्हाट? 1, पेज साइज 1 ही है, तो 4 अपॉन 1 4 आ जाएगा। तो हाउ मेनी बिट्स रिक्वायर्ड पेज के लिए? sir, 2. 2। वेरी 2. Yes. गुड, बिट फॉर ऑल। अब देखे थे ऑप्शन को लोग अच्छा सेम रहती है, यहाँ भी सेम। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पेज टेबल होगी। अब इस प्रोसेस के अंदर कितनी एंट्रीज होगी बताइए? ये प्रोसेस है, मान लीजिए इस प्रोसेस का फिजिकल लॉजिकल एड्रेस ये था, तो इसके अंदर कितनी एंट्रीज होंगी? नंबर ऑफ पेजेस, तो कितने पेजेस हमारे पास? 8। कितनी एंट्री होंगी? 8. बिकॉज एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन पेज टेबल। ओके, तो 0 से लेते हम यहाँ पर, अगर से ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ कितना जाएगा? 7। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी है? मान लीजिए अगर से कितनी इसकी वैल्यू है? पेज नंबर अगर से हम बाइनरी में लें या बाइनरी में या अगर से ये हमारी किसमें डेसिमल में है, तो 6 मतलब कहाँ पे? यहाँ आ जाए। ओके, क्लियर है? और ये क्या होगा? ये फ्रेम नंबर, तो ये बेसिकली क्या है? ये कंसिडर करेंगे फ्रेम नंबर, इसके अंदर फ्रेम नंबर जो होगा वो आएगा। और इसमें कितने मेन मेमोरी में क्या होंगे? कितने फ्रेम होंगे हमारे पास? 4। अभी इस टाइम तो 40 फ्रेम हमारे पास है इनिशियली। सपोज दैट, सॉरी 0 से करते हैं। नाउ दिस 6 is combined with page table base address। उसको प्लस करेंगे, यहाँ मान लीजिए कितनी वैल्यू है? यहाँ मान लीजिए यहाँ 2 वैल्यू है, 2 कहाँ पे हो जाएगा? इसका कॉर्डिंग फ्रेम। ओके, ना इस फ्रेम नंबर में कितनी वैल्यू, कौन सी वैल्यू करनी पड़ेगी इसको? 10, 10 वाला जो भी यहाँ पे आए उसको। क्लियर है? यानी इस पेज के अंदर 10th लाइन को रीड करना है, ऐसे समझ। क्लियर? यस, बताइए बेटे।
मीनाक्षी शर्मा, Yes, sir. क्लियर है बेटे? एनी डाउट? Yes, sir. No, sir. ओके। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को मैंने ऐसे ही समझाया पिक्टोरियली। फिगर दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. तो देख लीजिए एक बार, Yes, टेक sir. 30 सेकंड, टेक 30 सेकंड जो मैंने कहा था वही भी सब लिखा हुआ। अब क्योंकि ये एक बात आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया, 3 बिट्स कैसे आ रही है, 2 बिट्स कैसे आ रही है। Yes, now may I go ahead? Yes. आगे चले बेटे। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आपको, ये इस क्वेश्चन इस तरह के। Now physical address space in a system can be defined as the size of the main memory. तो फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या कहेंगे? मेन मेमोरी की साइज है वो, ठीक है। It is really important to compare the process size with the physical address space. If the process size is not less than physical address space, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जो प्रोसेस है उसकी साइज फिजिकल एड्रेस स्पेस से कम होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर? तो फिजिकल एड्रेस स्पेस इक्वल टू साइज ऑफ मेन मेमोरी। फिजिकल एड्रेस स्पेस कितना है? 64 KB। देन 2 की पावर 6 KB हुआ, 2 की पावर 6 into 2 की पावर 10 बाइट्स, दैट इज 2 की पावर 16 बाइट्स। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस 2 की पावर 16 बाइट्स। इफ यू मीन दिस मेन मेमोरी, क्या फ्रेम्स हैं बहुत सारे, इसकी साइज कितनी गिवन है? 2 की पावर 16, साइज ऑफ 2 की पावर, ओके। तो 2 की पावर 16 बाइट्स। अब इसमें मान लेते हैं इसका तो क्या, इसमें जितनी एंट्रीज होंगी उसको किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा? इसकी साइज, तो सेल की साइज। तो अब सेल की साइज कितनी है? मान लेते हैं अगर से 1 बाइट एड्रेसेबल है तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 16 डिवाइड बाई 1, या कितनी एंट्रीज आ जाएंगी? 2 की पावर 16 एंट्रीज आ जाएंगी। मान लेते हैं 2 बाइट, अगर से क्या है हमारे पास, 2 बाइट एड्रेसेबल है, यहाँ क्या हो जाएगा? 2, Two कितना हो जाएगा? 2 की पावर 15. 50। तो यहाँ पे कितनी एंट्रीज हो जाएंगी? 2 की पावर 15 एंट्रीज हो जाएंगे, 0 से स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ तक आएगा? 2 की पावर 15 माइनस 1, यहाँ तक आएगा। समझ में आ रही बात आपको? तो फिजिकल एड्रेस पे साइज ऑफ मेन मेमोरी ऐसे गिवन है, तो आप यहाँ जैसे यहाँ पे कितनी इंक्रीज हो सकती है मेन मेमोरी के अंदर, तो मेन मेमोरी में कितने फ्रेम्स आ सकते हैं? तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फ्रेम्स, और इसके अंदर पेज टेबल भी होगी, पीटीबीआर भी होगा, बहुत सारी चीजें, तो फ्रेम्स ही नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें और भी। क्योंकि पेज टेबल कहाँ स्टोर होती है? मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होती है ना। पेज टेबल कितना नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे, सब चीजें अपने दिमाग बिल्कुल माइंड में क्लियर रखिए सारी। तो लेट अस कंसीडर वर्ड साइज कितनी? 8 बाइट्स। कितनी है? 8 बाइट्स। 8. तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 16 डिवाइड बाई 8, 13 बिट्स। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस कितना हो गया? फिजिकल एड्रेस कितने आ गया? 13 बिट्स आ गए, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस गिवन था 2 की पावर 16 बाइट्स, एंड आपके पास वर्ड की साइज अगर से 1 बाइट होती तो कितना था? 16 बिट आ गया होता, ठीक है। Yes, sir. जनरली साइज होती है वो 1 बाइट की होती है, बाइट एड्रेसेबल होता है मेमोरी। इसीलिए यहाँ क्या करते हैं, जो गिवन होता है उसका क्या लेते हैं? लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ 64 KB। बट अगर से बाइट नहीं है, 3 बाइट है या कितना 8 बाइट है, तो यू डिवाइड दिस बाई 8, 8 बाइट, बाइट से बाइट
कैंसिल हो जाएगा एंड देन 8 8 64 तो 8000 दैट इज 5013. नाउ वी हैव टू टेक log of this 13 bits. 13 bits is required for. तो आप जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है. तो ऐसा आप देख रहे हैं कि आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? कॉन्सेप्ट. क्लियर है? यस बेटे, क्लियर. Yes, sir. तो फिजिकल एड्रेस स्पेस का इसका लॉग ले लेंगे हम. ये तो फॉर्मूला था हमारा. फिजिकल एड्रेस स्पेस का लॉग लेंगे तो क्या मिल जाएगा? In general, if physical address space is n words, then physical address could log into the base. Now logical में आते हैं. लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? एग्जाम में अगर आ जाए डिफाइन लॉजिकल एड्रेस स्पेस एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस विद एग्जांपल, 2 नंबर के आ जाए, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, तो आप इससे बता दीजिएगा. ठीक है. नाउ यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस Yes. स्पेस कैन बी डिफाइंड बाय साइज ऑफ द प्रोसेस. तो लॉजिकल एड्रेस मतलब क्या हुआ? सीपीयू जनरेट्स लॉजिकल एड्रेस मींस इट्स द साइज ऑफ द प्रोसेस. फिजिकल एड्रेस मतलब क्या है? साइज ऑफ द मेन मेमोरी. क्लियर बेटे? Yes. याद रखिएगा. Yes, sir. साइज एग्जाम में आपको देगा साइज ऑफ मेन मेमोरी. तो मतलब क्या दिया है? फिजिकल एड्रेस स्पेस गिवन है. कहीं गिवन है साइज ऑफ द प्रोसेस. तो मतलब क्या है? वर्चुअल एड्रेस स्पेस गिवन है. और वी कैन से लॉजिकल एड्रेस स्पेस गिवन. तो साइज ऑफ द प्रोसेस शुड बी लेस इनफ सो दैट इट कैन रिसाइड इन द मेन मेमोरी. लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या हो जाएगा? सपोज दिया 158 एम. तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस इक्वल टू 128 मतलब 27 बाइट्स. एंड वर्ड साइज कितनी है? 4 बाइट्स. 2 डिवाइड कर देंगे 27 को 2 से. ठीक है, तो कितना? 26 बिट्स है. लॉजिकल एड्रेस कितना हो गया? 25 बिट्स. तो इस लॉजिकल एड्रेस के अंदर क्या क्या होगा? कुछ कुछ क्या होगा हमारे पास? कुछ पी होगा और कुछ पी होगा. क्लियर है? यस. Yes. तो अब जब दिया होगा फ्रेम की साइज या पेज की साइज गिवन हो तो वहां से निकाल लेंगे. तो सब चीजें होंगी. वहां से फ्रेम कितनी गिवन है? 8. नंबर ऑफ कितने फ्रेम? 8 फ्रेम है. तो 3 बिट हो जाएगी इसके लिए और बाकी भी. ठीक है. अगर तो इसकी फ्रेम कितना हमारे पास से 32 है, देन नंबर ऑफ फ्रेम कितना है? 32. देन 5 बिट्स किसके लिए हो जाएगी? ये रिमेनिंग बिट्स. क्लियर है? यस. Yes. तो बेटा इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं चीजों को. और कॉन्सेप्ट पता होगा. कॉन्सेप्ट क्या है? फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या है? यहाँ भी लॉग आ जाएगा. वर्ड क्या होता है? WORD. तो वर्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी, द कलेक्शन ऑफ बाइट्स. तो मे बी बाइट एड्रेसेबल, 2 बाइट एड्रेसेबल, 8 बाइट एड्रेसेबल दिया होगा एग्जाम. एवरी OS defines different word size after analyzing the n bit address that is input the decoder and took power n memory location that was from the decoder. तो मैंने आपको एक सिंपल टर्म में दे दिया, इसको आप देख लीजिएगा. पेज टेबल क्या होती है? तो देख लीजिए. अभी तक जो पढ़ा पेजिंग में क्या क्या था? पेजिंग में लॉजिकल एड्रेस था, फिजिकल एड्रेस था, Yes, sir. फ्रेम इन्वॉल्व था. अब पेज टेबल भी इन्वॉल्व है. तो सबके बारे में एकदम डिटेल में हम पढ़ाते जा रहे हैं. Page table is a DS data structure that is used by the virtual memory system to store the mapping between the logical address and physical address. पेज नंबर को फ्रेम नंबर में कन्वर्ट करना. Yes. Space is generated by CPU. However, आप रिपीट भी कर रहे हैं देखो. For the pages of the process, therefore they are generally used by the process. So logical address is used by the process. Physical address is the actual frame address of the memory. They are generally used by hardware or memory, specifically by RAM subsystem. The image given below considers physical address space m words, logical address space l words, page size p words. Suppose that. So physical address space of by m words, logical address space l words, page size p words. So page size given है p words and logical address space l words. So l by physical address कितना हो जाएगा हमारा? log m to the base 2 m bits जो भी मान लेता आ रही हूँ. logical address कितना हो जाएगा? log l and page आपसे कितना हो जाएगा? log. अब ये यहाँ देखिए, यहाँ पे नया फॉर्मूला पता गई. अगर से पेज की साइज गिवन
क्या थी हमारे पास, मान लेते हैं 8 थी, क्या हो जाएगा log 8 द बेस 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो अगर से 8 वॉट्स गिव तो फिर ये हो जाएगा एज ऑफ सेट। ठीक, अभी आगे हम चेक करेंगे सारी चीज, ये फॉर्मूला याद रखिए। ये पेज टेबल हमारे पास है, पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक, 0 की पावर 2 की पावर एलपी। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे क्या वेद था, एज ऑफसेट पी बिट्स, एज साइज कितनी पी वर्ड्स है, तो 0 टू ये हो गया। फिजिकल एड्रेस कितना होगा, एम बिट्स था हमारे पास एंड 1 बिट्स है, तो पेज ऑफसेट सब में से माइनस कर देंगे, तो पी यहाँ से माइनस हो गया, पेज ऑफसेट यहाँ से माइनस हो गया, और टोटल कितने एम बिट्स थी, तो ये माइनस सेम नंबर हो जाएगा। ठीक है, यस Yes. ये था मॉड्यूल, Yes, sir. आवाज आ रही है हमारी? Yes. हाँ, Sorry. डिस्टेंस में भी हो जाता तो वो नेट हमारे यहाँ भी है, पर कोई बात नहीं है, हम लोग मैनेज करेंगे। अभी हम लोग का तो सिलेबस ठीक ठाक ही चल रहा है, क्यों Yes, sir. चल रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेट शेयर में किया गया, ये सारी चीजें आप लोग एक पॉइंट पे लिख लीजिएगा, जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पेजिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, अर्पित 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 नहीं है आज, अमित जायसवाल, Yes, sir. बेटा बताओ पेजिंग में कौन कौन से टर्म पढ़े अभी हम लोगों ने? Logical address, physical address, और वेरी गुड, frame, pages, और सर और तो बता रहे हैं। बताओ। और सब पेज टेबल अभी पढ़े, और डाटा स्ट्रक्चर, हाँ, मतलब यस, बस सर और कोई ये बताएगा? यस, और कोई बताएगा? जो आप सामने लिखा हुआ है सारा, शो हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, आपको यहाँ से क्या करना है, लॉजिकल एड्रेस, सीपीयू जनरेट लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस हो गया, लॉजिकल एड्रेस स्पेस हो गया, इसके दो पार्ट होते हैं, पेज नंबर, पेज ऑफ स्पेस। ठीक है, फिजिकल एड्रेस पे आ गए आप, तो फिजिकल एड्रेस हो गया, फिजिकल एड्रेस स्पेस हो गया, इसके दो पार्ट होते हैं, फ्रेम नंबर, पेज ऑफ स्पेस। पेज टेबल पे आते हैं आप, पेज टेबल के अंदर क्या हो गया, नंबर ऑफ एंट्रीज एंड ये आपकी क्या होगी, साइज ऑफ ईच एंट्री, साइज ऑफ ईच एंट्री, और साइज ऑफ द प्रोसेस, साइज ऑफ द पेज टेबल, साइज ऑफ द मेन मेमोरी। ठीक, ये सब चीजें हैं, यस तो भूलेंगे नहीं आप। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फ्रेम नंबर है, 1 फ्रेम इक्वल टू 3 वर्ड्स, अगर से लेते हैं 1 फ्रेम इक्वल टू 3 वर्ड्स, तो फ्रेम नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास 3, फ्रेम आपसे कितना हो जाएगा 4, बिकॉज 12 बिट्स को डिवाइड किया आप, तो फोर्थ वर्ड फ्रॉम द थर्ड, मतलब क्या हुआ फोर्थ वर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या था, फ्रेम नंबर 2 वर्ड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 वर्ड्स, 0 से लेकर 8 तक जाएगा, तो हर फ्रेम की साइज कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, साइज एवरी फ्रेम ना 3 वर्ड्स 0 से 8 तक जाएगा, तो अब इसके अंदर इस फ्रेम, तो पहले क्या फ्रेम नंबर 3 पे आएंगे, फ्रेम पे आएंगे, इस फ्रेम से चौथा ऑफसेट सबको इसको रीड करना, क्लियर है? यस दिस इज द मीनिंग, क्लियर है? फ्रेम नंबर और फ्रेम ऑफसेट मतलब क्या होता है, समझ आ गया? तो दिस इज क्लियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफसेट? यस
मैपिंग फ्रॉम पेज टेबल टू मेन मेमोरी कैसे करेंगे? हाउ वी कैन गेट द एक्चुअल फ्रेम नंबर? तो फ्रेम नंबर एंड द ऑफसेट फ्रॉम द फिजिकल एड्रेस, तो फ्रेम नंबर एंड द ऑफसेट फ्रॉम द फिजिकल एड्रेस मैप द मेन मेमोरी इन ऑर्डर टू गेट द एक्चुअल वर्ड। तो हमारे पास लॉजिकल एड्रेस था, वहां से हमने पेज टेबल लिया, पेज टेबल से क्या निकाला? फ्रेम नंबर निकाला। नाउ फ्रेम नंबर और ऑफसेट उसको कंबाइन करके हम कैसे निकालेंगे एक्चुअल? यहाँ देखिए क्या है, सीपीयू जनरेट्स व्हाट? Yes. ऑफसेट, देन वी हैव टू परफॉर्म स्केलिंग। स्केलिंग मतलब जो हमारे पास बेस टेबल का बेस रजिस्टर था का एड्रेस उसको यहाँ पे ऐड करेंगे, तो जो वैल्यू है क्या कर देंगे? डिजायर्ड पेज, दैट इज द डिजायर्ड फ्रेम, दिस फ्रेम इज कंबाइंड विद दिस ऑफसेट। ओके क्लियर? तो वन थिंग इज स्केलिंग। स्केलिंग मतलब एडिंग द बेस एड्रेस ऑफ पेज टेबल टू द पेज नंबर, जो हमको मिलेगा वही क्या हो जाएगा? हमारा डिजायर्ड फ्रेम। ओके क्लियर? Yes. यस बेटे, यहाँ पे इसका एड्रेस 0 है, तो जो नंबर यहाँ आएगा वही वही हो जाएगा। 0 है। पिक्टोरियल अगर से आपने सारे ऊपर के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं थ्योरेटिकली तो आपको ये फिगर समझ में आ जाएगा। बिल्कुल तो फाइन बैठा लीजिए। हाउ वी कैन कंप्यूट फिजिकल एड्रेस बाय वर्चुअल एड्रेस फ्रॉम वर्चुअल एड्रेस मैपिंग फ्रॉम पेज टेबल टू। So in OS, there is always the requirement of mapping from virtual address to address. However, process involves various steps that define as follows. First one is generation of virtual address. Very first, CPU generates virtual address. Each page of the process. So CPU generates logical address for each page of the process. अगर एक प्रोसेस के 4 पेजेस हैं तो हर पेजेस का वो क्या करेगी? लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगी। This contains Yes. two parts, number and page of scaling. Determine the actual page number of a process. CPU stores the page table base special register that is called page table base register. Each time the address is generated, the value of the page table is added to the page number to equal the position of the page table. This process is called scaling. Physical address, same number of the desired page is determined by its entry in the page table. Then it is generated, which is also contains two parts, same number and offset. Offset will be similar to the offset of the virtual address, therefore it will be copied from the virtual address. Yes. Clear? Take 30 seconds and read all these points and keep the above figure in your mind. सर स्केलिंग बता दिए। स्केलिंग के मीनिंग जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ जनरेट किया 3 और पेज आपने कंटेन, ठीक है, ये पेज ऑफसेट है हमारे पास। तो नाउ दिस 3 ये क्या है? हमको एक प्रोसेस पी था, प्रोसेस का पर्टिकुलर पेज चाहिए। पेज मान लेते प्रोसेस का पेज क्या है? वन प्रोसेस था, सॉरी प्रोसेस पी है, इसका वाले पेज। तो पेज टू का क्या है? ये लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, ये पेज टू का लॉजिकल एड्रेस है। और इस पेज इस प्रोसेस का पेज टेबल होगी, इसका क्या होगा? इसका बेस एड्रेस होगा। तो इसका बेस एड्रेस हमने क्या लिखा है DTBR में? इसका 100। नाउ दिस 3 इज एडेड टू 100, तो क्या मिलेगा हमें? 100। दिस इज द करस्पॉन्डिंग फ्रेम। क्लियर? आफ्टर एडिंग दिस, ओके सर। ठीक है, क्लियर? तो जो पेज नंबर है Yes, sir. उसको हम इसका जो इसका ये क्या है? दिस रजिस्टर कंटेन द बेस एड्रेस। तो पढ़ा है तूने? अरे पढ़ा है ना? क्यों? यस सर। Yes. अरे Sir. का बेस वो बेस एड्रेस होता नहीं होता है? Yes. हमारे हमको एडिट करना है क्या? हमारे हमको इसको पॉइंटर से करना है, तो पॉइंटर हमारे पी है। पी कंटेन %a और वी कैन नेम ओनली ए। ए इज द नेम ऑफ द एरे। तो एरे का नेम क्या होता है? बेस एड्रेस होता है। अब हम ऐड करते हैं वैल्यू p + 3, क्या देगा ये हमको?
0 यानी यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो इसमें 0 1 2 दे देगा, ये देता है ना। यस Yes. बस वैसे यहाँ भी है, पेज टेबल एक तरह की टेबल है, उसमें बेस एड्रेस का स्टोर किया गया है, और जो भी पेज हमको रीड करना होगा उसका इंडेक्स दे देंगे, उस मैच कर देगा। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Now size of the page table. This question is size of the part of the process which is being executed by CPU must be present in the main memory in that time. तो process जो है, not whole process, part of the process. part एक process की size 10 पेज, और हमको क्या चाहिए, उसका 5वां पेज चाहिए। तो वो 5वां पेज जो है CPU को चाहिए होगा, तो वो पेज मेन मेमोरी में जरूर होना चाहिए जब उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा। ओके, फर्स्ट लाइन इज क्लियर? यस Okay. Now the page table must also be present in the main memory. तो उस प्रोसेस की पेज टेबल भी मेन मेमोरी में होनी चाहिए, और उस प्रोसेस का पर्टिकुलर पेज भी कहाँ होना चाहिए, मेन मेमोरी में होना। ठीक है, the size of the page table depends upon the number of entries in the table and the bytes stored in it. तो कितनी एंट्रीज है उस पेज टेबल में, और एक सेल की साइज। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस 24 बिट से मान लेते हैं, लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना 24 हो जाएगा। लेट्स सी पेज साइज कितनी है, 4 KB। पेज साइज कितनी है, 4 KB, 12 बाइट्स। तो पेज, अब देखिए यहाँ पे निकालेंगे इसको, लॉजिकल एड्रेस 24 बिट, तो 24 बिट्स का मतलब क्या हुआ, 2 पावर 24 ये हुआ, और पेज की साइज कितनी है, 4 डिवाइड कीजिए, 4 डिवाइड कीजिए, कितना होगा, तो आएगा, ये तो आएगा। Yes, sir. ठीक ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस स्पेस 24 बाइट, तो यहाँ पे इसको हम अगर मान लेते हैं लॉजिकल एड्रेस 24 बिट, तो टोटल कितनी बिट चाहिए होगी, 24 चाहिए। यस और इसमें कितने पेज है बताइए, नंबर ऑफ पेज कितने होंगे, कौन बताएगा, नंबर ऑफ पेजेस, So 12. 12 यस पेजेस इज 12। No. 4 KB divided by power 24, मतलब क्या हुआ, 24 divided by 2 power, कितना आया, ये हुआ ना पूरा, 12 क्यों, ये तो आएगा। If you Yes, divide sir. logical address space by page size, then you get 2 power 12. So 2 की power 12 pages. So how many bits are required? 12 bits are required for इसके लिए, पेज के लिए कितना बचेगा। ओके, क्लियर। तो आप कोई एक तरीका पकड़ लीजिए निकालने का, नंबर ऑफ पेज